हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मेरे हिमालयन का ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूँ आफ्टर 7000 किलोमीटर्स एंड अराउंड 1 ईयर प्लस मैं ये गाड़ी ओन करके हो चुका है मेरे को। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। दिस इज़ माय हिमालयन 450 काजा ब्राउन। सो after riding this for around 7000 kilometers, my overall review is really nice. The suspension on this thing is absolutely amazing, next level bike. Then the braking is really good. Engine heating is an issue but only in city, but if you are riding it in on a highway, this bike is a absolute, what can I say, it feels like you are sitting on a sofa and riding. It's that good of a ride quality and that good of a experience it has. So there are some issues and plus points plus negatives. So let's start with the plus points. So mileage on highway is really good. I mean, next level mileage you will get on highway. You can expect of mileage up to 30 to 35 if you are riding on 80 at sixth gear. I mean, it goes like a sweet. There are no words how good this machine is on that speed. Then the suspension, as I said earlier, really good suspension. You can't adjust any of this suspension, but the ride quality is great on the suspensions. You don't even feel the bumps. Off-roading capability is easy if you know how to do off-road. If you are a beginner, then you can just leave it. You can't do any off-roading on this. This is not a beginner's machine. Then the plus point are the brakes. The brakes of this machine are really good. It has covered around 7182 kilometers, and both of its brake pads are still working and they are offering a nice bite. Excellent. The service cost is also manageable. I mean, if you're owning a Himalayan 450, if you're owning a bike that costs around rupees 4 lakh, it is normal to pay a service bill up to 2000 rupees after 6 months. Really great machine. Then the service quality of Royal Enfield is absolutely great. I mean, I have this top box because I travel from Mumbai to Pune regularly. I stay in Pune, but I have college in Mumbai. That's why. Then coming up to the mirrors, standard mirrors are not that good on highway. They don't offer any good quality. Plus, due to the wind they turn. Uh, that's it for the. Then coming to the bad points, you can ride it in city, but heat तुम्हें खा जाएगी. You can't ride it on shorts. You always need to wear a jeans and a shoe, or else तुम्हारे पैर की लग जाएगी. बहुत ज़्यादा हीट होती है in traffics. Then coming to the next bad point is this headlights are not good. uh, मैं एक बार कर रहा था नाइट राइड जब ये इनिशियली ली थी मैंने, एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन नाइट राइड, तो ये लाइट्स तुम्हारे किसी भी काम के नहीं है. कमिंग टू द फ्यूल टैंक कैपेसिटी, it's 17 liters. It goes up to 400 kilometers if you ride it on a highway continuously. 400 kilometers आप कर सकते हो, बट एकदम कट टू कट हो जाएगा एक सिंगल टैंक में. उसके बाद और एक बैड, वो बेसिकली गुड पॉइंट है, पर उसके वजह से बाइक का वेट बहुत ज़्यादा हेवी हो सकता है, हो जाता है. तो इफ़ आप लाइट वेट गाड़ी की आदत है तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा हेवी है. आई मीन इसका वेट इज़ समथिंग ऑन द नेक्स्ट लेवल. सो देन लगेज कैरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है. मैंने इस पे एक बार विदाउट टॉप बॉक्स डिवाइडर किया था. उस वक्त मेरे पास 3 सैक्स थी और एक बड़ी बैग थी. उसके साथ मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा था उसकी बैग लेके, एंड हमने वो डिस्टेंस काफ़ी अच्छी तरह से कवर किया. सो दैट्स इट फॉर दैट. मतलब कैपेसिटी तो है, मगर वही बात है, अगर हाथी चलाने वाले हो तो हाथी को संभालना भी आना चाहिए. इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग.
सो और क्या है इस बाइक के अच्छे बैड पॉइंट्स और गुड पॉइंट्स? टेल लैम्प्स आर ओके, दे आर नॉट दैट गुड। देन हाँ, मैंने ये बाइक मुंबई पे लेके गया था पहली बार फॉर माय कॉलेज, तो इसका एक एपीएस सेंसर है यहाँ पे, तो ये बिगड़ चुका था। और रॉयल एनफील्ड को लगा कि भाई टेम्पररी इशू है, वो इशू 2 बार सॉल्व नहीं हुआ, पर तीसरी बार उन्होंने ये पूरा सेंसर मुझे फ्री में चेंज करके दिया। ऑफ कोर्स गाड़ी वारंटी में थी उस वक्त, अभी भी है, ओनली 1 ईयर। सो दैट्स इट। देन if you are planning, go for the top sorry big windscreen, because बहुत ज़्यादा विंड आती है, बहुत ज़्यादा आपको हाईवेज पे उसकी इशू हो सकता है अगर आपने वो स्टैंडर्ड विंडशील्ड लिया तो। बड़ा वाला विंडशील्ड इज़ अ मस्ट। उसके बाद आपको ये गाड़ी सीखनी, मतलब इफ़ यू आर अ बिगिनर, मेरा मानना है अगर ये गाड़ी आप एज अ बिगिनर ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि द बाइक हैज़ टू मच पोटेंशियल और बिगिनर्स के लिए नहीं है आई गेस। मतलब मैं उसको तो रिकमेंड नहीं करूँगा इफ़ यू आर अ बिगिनर कि आप सीधा हिमालयन ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर है। फील नहीं होता एट सम पॉइंट, पर है बहुत ज़्यादा पावर है। एंड इज़ देयर एनीथिंग एल्स? सो यही इशू है। एक बैड पॉइंट इसका ये है कि इसका जो ये आप देख सकते हो ब्रेक फेलियर का, ये बहुत ही ओपन है और ऑफ रोडिंग के वक्त आपको उसका इशू हो सकता है। टायर्स फॉर ऑफ रोडिंग आर नॉट दैट गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऑफ रोडिंग पे भी लेके गया हूँ इसको बहुत बार, पर ऑफ रोडिंग के वक्त नॉट दैट गुड ग्रिप। फिर कमिंग टू द, अभी मैंने इस गाड़ी पे एडिशनल क्या क्या लिया ना स्टॉक के बोला, ये जो गाड़ी है तो स्टॉक में आता है, मैंने एडिशनल ये लेग गार्ड लिया है, फिर एडिशनल विंडस्क्रीन, एक मोबाइल फोल्डर 8 GB का, ये कोलगा ब्रोज का टॉप बॉक्स। ये बहुत ही बढ़िया टॉप बॉक्स है, क्योंकि इससे आप लोग उसका लंच टेबल भी बना सकते हो। ये पैनल्स जो है ये बाहर आते हैं एंड इट्स वेरी स्टर्डी। उसके बाद मैंने जैसे आपको बोला था पहले बार कि मुझे लाइट्स का बहुत इशू आया था, सो मैंने ये लगाया है मैड डॉग रेज। दीज लाइट्स आर एक्सीलेंट फॉर नाइट राइड्स। मैं आपको थोड़ी देर में इस लाइट्स के वजह से मैंने कितनी डेंजर राइड कवर की उसका एक छोटा सा, ये है मेरे पास एक है वीडियो, वो शेयर करूँगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस टुडेज़ व्लॉग। होपफुली मेरी आवाज़ अच्छी आ रही हो। मैंने इस बार कुछ एडवेंचरस नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस वाज माय हिमालयन 450 रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। एक्सीलेंट हाईवे ड्राइविंग मंचो। देन रॉयल एनफील्ड, इट्स अ माइल्ड मंचा एज आई टोल्ड अर्लियर। एकदम स्टेबल मशीन है, हाई स्पीड्स भी कर लेती है। मैं प्रमोट नहीं करता हाई स्पीड्स करना, पर आई हैड डन 150 ऑन दिस, टच 150। उसके बाद बस इतना ही किया था। एंड वेन एवर यू आर राइडिंग ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, आई ऑल्सो वेयर अ हेलमेट, इट्स इन हियर। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, not vlog, this is a review. Hopefully you guys like it. We'll see you on the next one. काहीच दिसत नाही भाऊ, काहीच.